Hello plant lovers, here is Rahul Rao from Horticulture Rejuvenation. Today I am here to discuss hibiscus plant. Few days back I have shared a video on Instagram about 6 blooms together. Many people were asking how to get blooms, how to take care of hibiscus. So first let's see the video which I have shared on Instagram. I'm shooting hibiscus in umbrella, it's raining today. And 6 blooms together, you can see that, you can see the bloom, it's really mesmerizing. When you care good and when you fertilize good, it results like this. So you have seen the video of 6 blooms. Today plant has flowered 2 flowers and regularly it is blooming at least 2-3 flowers. So what we should be doing to get blooms, let's see. First we'll come to sunlight. How much sunlight we should be providing to plant. I'll start with summers. How much sunlight we should be providing during summers. I'll say 2 to 3 hours of direct sunlight and rest of the indirect sunlight. When temperature goes above 40 degrees Celsius, if you are a region like Delhi, Raipur or Nagpur, you should be providing 2 to 3 hours of direct sunlight and rest of the day indirect sunlight. क्योंकि समर्स में इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है सनलाइट की, तो प्लांट अगर पॉट में है तो ये नहीं सहते हैं, अगर ग्राउंड में है तो एक बार कुछ ज़्यादा सनलाइट दे दे तो चल जाता है. बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है तो आप इनडायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा दीजिए, 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट दीजिए. अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है, इफ़ टेम्परेचर इज़ comparatively lesser than 40 degree Celsius, then I say that आप 3-4-5 घंटे की सनलाइट दे सकते हैं और बाकी दिन इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रखेंगे तो चलेगा. So this is the part in terms of sunlight during summers, and rest of the season I'll say that 5 to 6 hours of direct sunlight at least you should be giving, क्योंकि blooms तभी आएंगे जब आप अच्छा डायरेक्ट सनलाइट देंगे. और 5-6 घंटे से मैं नहीं बोलूँगा कि कम दीजिए, क्योंकि ब्लूम नहीं आने का वन ऑफ द रीज़न है कि सनलाइट कम मिलती है, और सनलाइट अच्छी नहीं मिलेगी तो भी एक चीज़ होती है जो मैं आगे डिस्कस करूँगा, प्लांट्स में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं उस टाइम पे. When we will come to watering, I'll say that water when upper soil becomes dry. Don't leave it too much dry, otherwise bugs will come and what will happen is old leaves will start falling. So you have to take care of watering in these terms. You should be watering good to hibiscuses. What happens is, अगर आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी सारी foliage है, तो foliage होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वाटर ज़्यादा कंज्यूम करेगा. तो यहाँ पे आपको एक और रीज़न हो जाता है कि आपको ज़्यादा डालना है. अब कोई भी प्लांट को ले लीजिए, अगर फॉलिएज ज़्यादा है तो वाटर ज़्यादा कंज्यूम करेगा. जब तक वो स्पेशली कैक्टस वगैरह होते हैं, वो अगर वो सेव करके रखते, वो वाटर उतना प्रोटेक्ट करते नहीं हैं, तो ये सब प्लांट्स अच्छा करते हैं. तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है इसको, और फुल डायरेक्ट सनलाइट भी मिलता है तो वाटर जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं. तो इसी चीज़ में एक और चीज़ बोलूँगा कि पॉट थोड़ा अच्छा ले, 12 इंचेस का पॉट ले, क्योंकि आप अच्छी सनलाइट में रखने वाले हैं. तो यहाँ पे आपको पॉट का भी ध्यान रखना है कि पॉट 12 इंच का तो हो पॉट. उसके बाद हम आते हैं इसकी फर्टिलाइजेशन पे. फर्टिलाइजेशन आपको रेगुलर करना है. अगर ब्लूमिंग चालू हो गई है तो आप रेगुलर करना है. 2 केसेस में नहीं करना है. जब एक्सट्रीम समर हो, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, 40 के प्लस चल रहा है, तो आप मत कीजिए फर्टिलाइज़. और या फिर अगर विंटर में जाते हैं तो आई से दैट डोंट फर्टिलाइज ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर, बिकॉज इट गोज़ इनटू डॉर्मेंसी ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर. सो यू हैव टू टेक केयर इन दैट केस ऑल्सो. Or about fertilizer, I have shared in Instagram also what I have tried and what works for me. I'll say कि एक mixed fertilizer I suggest for most of the plants, especially flowering plants. Vermi compost 50%, 25% bone meal and 25% mustard fertilizer. उसका आप mixed fertilizer बना लीजिए, आप feed कर दीजिए. It really works for me. I think it will work for you also. तो आप वो ये चीज़ try कर सकते हैं in terms of fertilizer. एंड आफ्टर दैट एक और चीज़ है कि आप इसे ग्रोमोर फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, इनऑर्गेनिक है तो वहाँ पे आप इसे दे सकते हैं. अगर आप NPK भी दे सकते हैं, जहाँ पे फॉस्फोरस का जो रेशो हो ज़्यादा है,
ज़्यादा हो तो वहाँ पे एक पार्ट है। उसके बाद आप बनाना पील वगैरह जो भी ऑर्गेनिक अगर ट्राई कर सकते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। दीज थिंग्स वर्क समटाइम्स, सो यू कैन रियली गिव दीज फर्टिलाइजर्स। और कॉमन प्रॉब्लम्स पे आए तो इसमें मिलीबग आपको काफ़ी दिख जाते हैं, काफ़ी सारी क्वेरीज भी आते हैं मिलीबग के बारे में। एफिड्स दिख जाते हैं, अगर आप सही एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फॉलिंग ऑफ बर्ड भी होता है। तो इन सब चीज़ को हम कैसे इरेडिकेट करें? व्हाट आई से इज़ इफ़ यू विल कीप ऑन स्प्रेइंग नीम ऑयल इन इंटरवल्स ऑफ 15-20 डेज यू विल नॉट सी मच बग्स, क्योंकि एफिड्स और मिलीबग जो है कि उतनी नहीं दिखेंगी अगर आप नीम ऑयल 15-20 दिन में डालते रहेंगे तो। उसके बाद अगर हम आते हैं फॉलिंग ऑफ बर्ड्स की, तो फॉलिंग ऑफ बर्ड्स एक कॉमन प्रॉब्लम है हिबिस्कस में, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो ये होता है सनलाइट नहीं मिलने की वजह से, डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलने की वजह से। अगर आप 1-2 घंटा भी सनलाइट में लैग कर रहे हैं तो वो बर्ड्स गिरते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अगर फिर भी हो रहा है ये चीज़ तो हम इस पे और भी चीज़ें हैं जो होती हैं इस हिबिस्कस प्लांट में बर्ड्स गिरने के, पर दिस इज़ द मेजर रीज़न कि सनलाइट नहीं मिल रहा है तो बर्ड्स गिरते हैं। तो यहाँ पे पहले सनलाइट दीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है बर्ड्स गिरने की आधा यहीं चली जाती है। उसके बाद आते हैं हम कि इसकी सॉइल मिक्स क्या होना चाहिए। अगर आप जब नर्सरी से ला रहे हैं तो इसको कितने सॉइल मिक्स में आप रखें। तो आई से दैट 50% सॉइल हो, 20% सैंड हो, 15% वर्मी कंपोस्ट हो, 5% बोन मील हो, 10% कोको कॉयर हो। यहाँ पे मैं काफ़ी देखा हूँ ये चीज़ कि कई लोग सैंड मिलाते नहीं हैं। इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है तो सैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सैंड अवेलेबल नहीं है हमारे पास, हम इसलिए नहीं है तो नहीं डाले। तो आपको मैं बताता हूँ अवेलेबिलिटी कैसे होती है सैंड की। कंस्ट्रक्शन शॉप होगा आपके आसपास नहीं तो कुछ दूर में तो होगा ही। तो कंस्ट्रक्शन शॉप में आप जाके बोलिए आई यूजुअली यूज़ बारीक रेती, फाइन सैंड आई यूज़। तो आप वहाँ जाके बोलिए कि बारीक रेती चाहिए हमें, एक सैक में ले लीजिए या बोरी में ले लीजिए। तो वो आपको 60-70 रुपीज़ में दे देंगे एक बोरी। मेरे को नहीं लगता अगर आप एक छोटा ट्रॉली भी लाते हैं तो 400-500 में आ जाता है। इतना नहीं भी जाना है तो 60-70 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करके अगर रिक्वेस्ट भी करेंगे तो 100 रुपीज़ में आपके घर भी छोड़ देंगे। तो इट इज़ रियली बेनिफिशियल, आपको सैंड डालना है। ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि हम सैंड नहीं ला पा रहे हैं, हमारे पास नहीं है, हमें नहीं मिला। So you have to remove these excuses because LBI will never let you succeed. अगर आपको फ्लावर्स चाहिए तो you have to do things like providing good drainage। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। बोन मील इसीलिए मिलाना है क्योंकि स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है, फॉस्फोरस है, रूट डेवलपमेंट में इसको फ़ायदा करेगा, फ्लावरिंग में फ़ायदा करेगा। और कोको कॉयर थोड़ा सा मॉइस्ट रखेगा क्योंकि हमने बात किया है कि ये बहुत ज़्यादा पीरियड करता है, वाटर का लैक नहीं होना चाहिए, थोड़ा मॉइस्ट रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप कोको कॉयर डालिए, आप ऊपर से भी थोड़ा मल्चिंग कर देते हैं तो भी सही है। और प्रोपगेशन की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन ही मैंने अभी काफ़ी टाइम से देख रहा था कि मानसून में काफ़ी सारी प्रोपगेशन नहीं वर्क करती है। अब काफ़ी लोग जो प्रोपगेशन हार्मोन रहता है, रूटिंग हार्मोन, उसको यूज़ करके करते हैं। आई जनरली नॉट प्रेफर। अगर आपको करना है तो कर सकते हो, मैं तो ये बोलता हूँ कि आप सही सीज़न में करिए। जैसे इसको आप स्प्रिंग या समर में करिए तो प्रोपगेशन आपका अच्छा होगा। तो आप मानसून में भी ट्राई कर सकते हो, पर अगर नहीं काम करता है तो स्प्रिंग और समर में ट्राई करिए। आप सीज़न चेंज करिए। अगर आप बोलेंगे कि अब प्रोपगेशन हर बार नहीं काम करता, एक सीज़न बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, प्रोपगेशन हो या फिर सीड से ग्रो करने की बात हो, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम प्रून की बात आए तो एक और बहुत बड़ा कारण है फ्लावरिंग का। अगर आप इसमें बर्ड्स देख रहे हैं बहुत सारा, तो वन ऑफ द रीज़न है दैट हैव प्रून्ड इट। प्रून होने से क्या होता है कि ब्रांचिंग निकलती है, ब्रांचेस आते हैं एंड ब्रांचेस गिव्स यू दिस ब्लूम्स। क्योंकि यहाँ से अगर 2-3 ब्रांच निकली कि यू कैन सी दैट 2-3 ब्लूम्स आर गेटिंग फ्रॉम दिस पार्ट एंड यहाँ पे 2-3 ब्लूम्स आर गेटिंग फ्रॉम दिस पार्ट। सो इफ़ यू वांट फ्लावर्स, अबंडेंस ऑफ फ्लावर्स, देन यू हैव टू बी प्रूनिंग। एंड वन मोर थिंग दैट ये भी चीज़ है कि बहुत सारी बुशी भी हो जाएगी तो वाटर भी कंज्यूम करेगा। एज ए टॉक और वाटर कंजम्पशन, तो आपको यहाँ भी ध्यान देना है। ऐसा ठीक है, जितना ब्लूम आ रहा है उतना सही है। अगर बोलेंगे कि आपको 5-6 ब्लूम डेली मिलते रहे तो ये थोड़ा सा नीचे आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा।
आपको कंपेरेटिवली बड़ा पॉट लेना पड़ेगा और सॉइल मिक्स भी थोड़ा वैसा प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो आपको वहाँ ध्यान देना है। तो आई थिंक आई हैव शेयर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड होपफुली आपके भी ब्लूम हो, एंड आई वांट कि आपकी ब्लूम्स हों अच्छे। आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं इसमें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। अगर कुछ बग्स लगते हैं तो मैंने अगर मिली बग है तो आप इंसेक्टिसाइड भी डाल सकते हैं अगर आ गया है तो। there are lots of things to share, but I think I've shared most of the things. You can share things on comment अगर कुछ बात है तो. So this was the care of hibiscus. Thank you for watching. Keep gardening.